ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశం ఎంతో ఉన్నతమైన దేశం. ఆ ఔన్నత్యానికి కారణం మన దేశ సంస్కృతి. ప్రపంచ దేశాల్లో అంతంత మాత్రంగా కనబడే నైతిక విలువలు, సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు మన సంస్కృతికి మూలాధారం. నేటి ఆధునిక కాలంలో మన సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మ అయినటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవుతుంది. అందుకు కారణం పాశ్చాత్య సంస్కృతి కొంత కారణమైతే, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ నుండి ఏక కుటుంబ వ్యవస్థకు మారడం కొంత కారణం. ప్రస్తుత తరానికి మన ఆచార వ్యవహారాలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కుటుంబ చరిత్ర, నైతిక విలువలు చెప్పడానికి కుటుంబాలలో పెద్దలు లేకపోవడం అత్యంత పెద్ద లోటు. భార్యాభర్త ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులైతే ఇది పిల్లల మీద మరింత తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. భార్యాభర్తలు తమ దైనందిన కార్యక్రమాలతో తీరిక లేకపోవడంతో, తమ పిల్లలతో గడపలేకపోవడం వల్ల వారు వివిధ ప్రలోభాలకు, నేర ప్రవృత్తికి, నేటి టెక్నాలజీ కాలంలో అందుబాటులో ఉన్న సెల్ ఫోన్లు, టీవీలకు నేటి తరం పిల్లలు పాశ్చాత్య సంస్కృతికి అలవాటు పడుతూ మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తెలియక తమ జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పటికీ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు తన వంశ మర్యాదలు, నైతిక విలువలు, కుటుంబ చరిత్ర, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తెలిపాలనే ఆలోచనతో ఉండడం కొంతవరకు మన దేశ ఔన్నత్యం కాపాడబడడానికి ఒక కారణం కావచ్చు. కొన్ని విషయాలలో నిష్ణాతులైన తల్లిదండ్రులు తమ విలువైన సమయాన్ని వ్యాపారాలకు, ఉద్యోగాలకు, తమ వ్యాపకాలకు కేటాయించడం వల్ల పిల్లలతో సరైన సమయం గడపలేకపోవడం వల్ల తమకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని అందించలేకపోతున్నారు. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను, ఆచార వ్యవహారాలను, నైతిక విలువలను నేటి తరానికి తెలియజేయడానికి ఇంక్విలాబ్ టీవీ చేస్తున్న ఒక చిన్న ప్రయత్నమే ఈ సంస్కృతి సంప్రదాయం కార్యక్రమం. భారతదేశంలో ఎన్నో మతాలు, కులాల ప్రజలు ఉన్నప్పటికీ వారంతా కలిసి ఉండడానికి కారణం మన దేశ సంస్కృతి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా భారతదేశ పౌరులందరూ కలిసి ఉండడానికి కారణం మనలో ఉన్న సోదర భావం, ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉన్న గౌరవం, ప్రేమ, ఆప్యాయతలు. ఇదే మన సంస్కృతి మనకు బోధిస్తుంది. అందుకే ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క మతానికి సంబంధించిన మంచి మంచి విషయాలను, మత మందిరాలను, వాటి ప్రాముఖ్యతను, మందిరాల చరిత్రలను నేటి తరానికి తెలియజేసేలాగా ఇంక్విలాబ్ టీవీ చేపడుతున్న ఈ సంస్కృతి సంప్రదాయం కార్యక్రమానికి మీ అందరి సహకారం ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం. మా కార్యక్రమం చూడండి. మీ అభిప్రాయాలను నిర్మోహమాటంగా మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మా కార్యక్రమం నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ మిత్రులకు, బంధువులకు మా కార్యక్రమాన్ని తెలిపి వారు కూడా మన కార్యక్రమాన్ని చూసి కొంతైనా మంచి నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించండి. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రాశస్త్యం ఉన్న దర్గాలలో సికింద్రాబాద్ మౌలాలి కొండపైన హజరత్ మౌలా అలీ దర్గా ఒకటి. ఇక్కడికి దేశ నలుమూలల నుండి భక్తులు వస్తుంటారు. మౌలా అలీ దర్గా ఉరుసు సందర్భంగా మన సంస్కృతి సంప్రదాయం కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నేడు మౌలా అలీ దర్గా విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి. ये सीढ़ियों का रास्ता है और इनकलाब टीवी वो रैम्प भी बताई हुई है। अब एक हुकूमत वक्फ बोर्ड जो है कि नया रास्ता यहाँ से रैम्प बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इनकलाब टीवी के ज़रिए ये करीब हो जाता है, गाड़ियों के ज़रिए जा सकते हैं आप सहूलत के लिए। ये सीढ़ियों की इतनी फासला तय नहीं करने वाले ज़ईफ़ हज़रात के लिए हुकूमत तेलंगाना गवर्नमेंट ने कदम उठाई है और तामीर देख सकते हैं इनकलाब टीवी बता रही है। एक मिनट
इनकलाब टीवी अभी जन्नतुल बखी के पास पहुंचे हुए हैं। यहाँ मौला अली में भी जन्नतुल बखी है, आप देख सकते हैं बोर्ड है। ये बारगाह है मौला अली के, बारगाह के ऊपर जाने के और सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से और गुजरना है अपन। यहाँ से गुजरते हुए बारगाह पहुँचते हैं। वहाँ पे मस्जिद है, वो पे यहाँ मस्जिद है, ये मस्जिद है, मस्जिद देख सकते हैं आप। कुछ सीढ़ियाँ तय करने के बाद लोगों को सांस लेने के वास्ते, राहत पहुंचाने के वास्ते सीढ़ियाँ हैं। जैसा अपन पहली सीढ़ी जो चढ़े हैं वहाँ छिल्ले मुबारक है गौसे पक्का, वहाँ से कदम बोसी करते हुए जन्नतुल बखी से लाया सो ये पत्थर है, यहाँ कदम बोसी कर कर ये और सीढ़ियाँ तय करने का है और करीब 200 सीढ़ियाँ हैं। बुलाया तो घंटे घंटे का मैंने यहाँ बैठ सकते बोल के भी दिए। बोलो इनकलाब टीवी जो है कि अभी अभी कई 100 सीढ़ियाँ तय करते हुए और तीसरी कमान तक पहुँचे हुए। आप देख सकते हैं कमान, अब ये तीसरी कमान है मौला अली की। ये देख रहे हैं आप, कमान कदीम कमान है, ये काम चल रहा है। काम जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से काम चल रहा है। ये मीर महबूब अली खान के दौर में बना तो दूसरा कमान है। देख सकते हैं आप, सीमेंट का काम हो रहा है, ये चुनना वगैरह देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जरिए काम हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर ऊपर डंका बसता है, यानी कि ऊपर जो है कि ऊपर का गच्ची का काम है पूरा। इनकलाब टीवी अभी चौथे कमान के पास पहुंचने वाली है। बारगाह मौला हज़रत सैयद मौला अली के कायनात के दरगाह शरीफ के करीब पहुंचे। अब आपको ये कमान भी पार करना पड़ता है। आप चलो मैं हाँ थोड़ा सा लगा लो तुम। इनकलाब टीवी के करम से, उनकी दुआओं के सदक़े इनकलाब टीवी ने 500 सीढ़ियाँ तय करते हुए बारगाह हज़रत अली के ने पहुँच गए हैं। ये आखिरी कमान है, यहाँ इतने सीढ़ियाँ तय करके इनकलाब टीवी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुकी है।
अब यहाँ से आप तमाम चीज़ों की ज़ियारत कर सकते हैं। इनकलाब टीवी अब बाहर गए हज़रत अली मौला अली के ये जंजीर है, हज़रत अली की जंजीर की ज़ियारत करवा रहे हैं। उनकी चौखट है, चौखट को ख़त्म बसी करते हुए दाखिल हो रहे हैं हम। अब ये नज़ारा कर सकते हैं, ये ख़वातीन हजरात रहने का है, तारीख देख सकते हैं। चला इधर यहाँ इनकलाब टीवी, इनकलाब टीवी आप जो है कि आपको रोज़े हज़रत अली की बारगाह में लेके जा रहे हैं। आप लोगों को ज़ियारत कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अलिया वलियुल्लाह व वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिल अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अलिया ज़ियारत होगी इनकलाब टीवी के ज़रिए। आप तमाम हज़रात देख सकते हैं, अंदर हज़रत अली का पंजा है, हक का पंजा है पत्थर पे, इसकी ज़ियारत होगी। अच्छे मुबारक कब्रगाह होगा। ज़ाहिरीन आ रहे हैं, आज उर्स शरीफ का मौका है। रजब की 12 तारीख है, रजब की 13 तारीख है। आज दिन का नज़ारा है ये उर्स का, उर्स शरीफ का। रात का नज़ारा भी बताएंगे। उर्स शरीफ के मौके पे 13 रजब के आज दिन का ये नज़ारा है, ये ज़ोहर का नज़ारा है। यहाँ कई लोग दूर दराज से भी आते हैं, अजमेर से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से। अब हमारे साथ यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए एक ज़ायरीन हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ज़ायरीन मराठी बोलते हैं, उन्होंने मराठी में बोलेंगे। ज़ायरीन महाराष्ट्र से आए हैं, आपका नाम क्या है? माझं नाव आहे शेख नाझिम शेख नजीर। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आया मैं। कौन से ज़िले से आए हैं? वाशिम जिला, तालुका रिसोड, गाँव वडजी।
इतना लो नहीं यहाँ पहली बार आया आप? नहीं 3 साल 3 वर्ष झाले मला यायला आपके मन्नता मुरादें पूरी हुए? हाँ ठीक क्या हुआ आपको? पैदा हुआ आपको? हाँ पैसा होगा हाँ, हजरत अली की ज़ियारत से पैदा हुआ? हाँ हम मराठी में आहे? मराठी फायदा झाला मला हां ठीक आहे त्यासाठी आज मी 3 वर्ष झाले मिस्त्री काम करतो हाँ। और बोलो घर के बारे में बोलो, क्या करते हो? कुदरत की दुआ से खेती बाड़ी सब रहे आप खुश हैं? हाँ खुश है इनकलाब टीवी जो है कि हज़रत अली के रोज़े मुबारक पे हाज़िरी दी हुई है। यहाँ के खादिम और मुतवल्ली साहब से बात करा रहे हैं। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीर अशरफ अली रज़वी है जी। उर्फ सईद के नाम से मुझे जानते हैं लोग। मैं इस बारगाह का मुंतज़िम हूँ जी जो यहाँ जो आज 13 रजब है हज़रत अली की विलादत का दिन है। रात भर शब में अमाल हुए, संदल कब चढ़ता था? रात भर शब में अमाल हुए। अभी शाम में जो है शब में हैदराबाद से मुख्तलिफ मुकामात से सेरे आने वाले हैं और 16 रजब को हैदराबाद से संदल में बरामद होते हैं। 17 की सुबह इस बारगाह में पहुँचते हैं और 18 को जो है चिरागों का दिन रहता है। सब यहाँ खुसूसियत क्या है ये बारगाह की? इस बारगाह की खूबियत ये है कि रसूलुल्लाह के दामाद की बारगाह है। यहाँ बहुत से मुर्तज़ा होते हैं, अच्छे से अच्छे बीमार आदमी भी आके यहाँ शफा पाके जाता है। यहाँ जो है जो लोग हाज़िरी वगैरह दस्तरखान वगैरह करते हैं, मौजूज़े होते हैं। तो बहुत यहाँ के नहीं बहुत दूर दूर से बम्बई बेंगलोर पुणे रायपुर लखनऊ सब तरफ से लोग आते हैं। यहाँ के हर कौम मिलत का आदमी आता है। तमाम इंतजाम हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड से कुछ नहीं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ मुतवल्ली अंजाम देता है, सिर्फ मुतवल्ली है इस बारगाह का। वक्फ बोर्ड क्या उर्स शरीफ में अखराजात वगैरह? नहीं, वो मुतवल्ली जानता है, मुतवल्ली से। अच्छा, वक्फ बोर्ड के ज़रिए सरकारी एक संदल हम हुजूर निज़ाम के दौर से सुनते हुए आ रहे हैं। हाँ। सरकारी संदल कब आता? वो सरकारी संदर कहाँ से आता? ये मौला के छिले से निकल के दारुल शफा बाल सती के फिरता हुआ कौन सी काली तारीख को खबर आता हो? वो 17 की सुबह आता है। यहाँ 16 को वहाँ से निकलता है। 17 की मौला सुबह का एक चिल्ला बार कहाँ है? याखुतपुरा अमलीवन वहाँ से होते हुए अलीजा कोटला दारुल मिराला मंडी जरा नगर दारुल शफा काली खबर से होता हुआ सीधा सरकारी संदल जी सरकारी संदर पहुँचता है। जी। आज का भी एक जुलूस आने वाला है ना, जो हजरात जुलूस है, शेरे लाते हैं अपने अपने अंजुमन वाले, अपने अपने कम्युनिटी वाले जो है शेरे आते हैं शाम। आज जी कब तक आते हो? रात में 11-12 बजे तक आते हैं। अच्छी बात है साहब, शुक्रिया। अब कुछ साथियाँ और हमारे नौजवान साथियाँ जम्मू कश्मीर से आए हैं। जम्मू कश्मीर भाई, आपका नाम क्या है? सैयद इशफाक अली कहाँ से आए आप? जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। कितने लोग आए आप? हम 10 जन जी कितने लोग? 10 जन। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आने का? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मौला अली की दरगाह के दीदार करने के लिए आए तो बहुत बढ़िया लगा, दिल को सुकून मिला। अच्छी जगह है। यहाँ पे पहली बार आए हम हैदराबाद में, पहला सीज़न है हमारा। पहली बार देखने के लिए आए इस दरगाह को, बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल गया, बहुत अच्छी अच्छा, आप कैसे फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करता आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद। आप कहाँ से आए? हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला से, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील हुई। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद रज़ाक हुसैन है और हम हैदराबाद में इस बार दूसरी बार आए हैं। बहुत सारे हमारे साथ हमारे दोस्त यार भी हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। आज 13 रजब को मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। देखा कि बहुत बढ़िया लगा, दिल को सुकून मिला। हमारे वहाँ पे मनाते हैं पर हैदराबाद में कुछ ज़्यादा ही हर जगह से लोग आते हैं और बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। और कुछ मनते थी हमारी जो यहाँ पे पिछली बार हमने मांगी थी, इंशाल्लाह पूरी हुई और उसी के दीदार करने के लिए आए और अपनी वो मन्नत को छोड़ने के लिए आए। शुक्रिया जनाब। हाँ, थैंक यू। खाना ख़वातीन भी ज़ायरीन आते हैं, कुछ ज़ायरीन ऐसे हैं पैरों के कई उम्र दराज ज़ायरीन हैं, उनमें से एक सीनियर सिटीज़न है, उनसे भी हम ख्याल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप कब से आ रहे हैं? मैं तो मेरे बचपन से आ रही हूँ। मैं जब छोटी थी मेरे माँ बाप लाते, उसके बाद से मैं खुद आ रही हूँ यहाँ मौला की ज़रूरत में। मुझे हर दुख दर्द सब भूल जाती हूँ, बस मौला से इल्तिजा करती हूँ कि जब तक मेरी हयात बाकी है आपके दर पे ज़रूर बुलाइए। आप कहाँ से आ रहे हैं खालामा? मैं खिला गोलकुंडे से आ रही हूँ। आप ये 500 सीढ़ियाँ कैसा तय करें खालामा? बस मेरे बेटे ने मुझे सहारा दिया, मैं यहाँ तक पहुँच गई। इतने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरे, आप चढ़ते उतरते हैं आज भी? हाँ, मेरा बेटा है, बेटा जो है बहुत सहारा दिए, अपने साथ ले आए। आपके यहाँ मन्नतें मुरादें पूरे होते हैं? जी ज़रूर, मन्नत मुरादें सब पूरी होती हैं।
आप पाबंदी से हाँ। उर्स शरीफ में शामिल होते हैं? बचपन से 13 रजब को ज़रूर शरीक होती हूँ। यहाँ रात का मंजर कैसा रहता खालामा? रात आज का उर्स मंज़र शरीफ तो में बहुत रहता, बहुत ज़ायरीन आते हैं, अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। मैं भी कई सालों तक रात में रहती थी, लेकिन अब मुश्किल है, इसलिए चले जाते। शुक्रिया खालामा। मद्रास से भी आए हुए, चेन्नई से, आप जानते हैं, जानेंगे आप। आपका नाम कहाँ है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम यासिर है और मैं चेन्नई तमिलनाडु से आया। बोल। मेरा नाम यासिर है और मैं चेन्नई तमिलनाडु से आया हूँ। आज उर्स शरीफ है ना, हाँ। आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? लगभग 2-3 साल से आ रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा फील है। आपके मन्नत मुरादे पूरे हो रहे हैं हज़रत अली के पास? इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह। आप ये भी मैं रायपुर और एक ज़ायरीन है छत्तीसगढ़ जो रायपुर से आए हुए हैं, जानेंगे अपन। हाँ ज़ायरीन, आप कहाँ से, आपका नाम क्या है? अमान नाम है, रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ से आया? रायपुर छत्तीसगढ़। आप कब से आ रहे हैं? बचपन से आ रहे हैं। अब ये उर्स शरीफ में ख़ास तौर आए हैं? जी। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? जी। आपकी मन्नत मुरादे पूरे हो रहे हैं हज़रत अली की? शुक्रिया। ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చినాము? ఇక్కడ భరత్ నగర్. భరత్ నగర్ అంటే ఏముండే మీ కోరిక అనేది ఇక్కడ? కోరిక ఏముండాలంటే మేము ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నాము. ఆయన దయతోటి కట్టుకున్నాము. అంటే ఇల్లు కట్టుకున్నారా? కట్టుకున్నాము, ఆయన దయతోటి కట్టుకున్నాము. మంచిగా అనిపించింది. కొంచెం భోజనం తీసుకొని వచ్చినాము. ఫస్ట్ టైం వచ్చినాము మేము. ఇంతకుముందు ఒకసారి వచ్చిపోయినాము. అంటే ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు మొక్కిపోయినారు, తర్వాత మీ పని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి తెచ్చి దేవునికి నైవేద్యం ఎత్తుతున్నారు. फातिहा के लिए उनकी मुराद पूरी हो जाती है। हो रहने के बाद ये लोग लाके यहाँ पर फातिहा दिखाते हैं। हम लोग इसको नज़र दे के यहाँ पर थोड़ा सा बोल निकाल के थोड़ा ये लोग को देते हैं। ये लो आप। हाँ, ये अभी लोग को जो है 1 मार्च 1, 2, 3 3 दिन इन लोग को साल में अंदर छोड़ते हैं। अच्छा, कहीं को वैसा तो नहीं छोड़ दर्शन सकते के लिए नहीं छोड़ते ना। अच्छा, मैं आपको परसों बोला नहीं, आज साल में जो है 3 दिन इन लोग को छोड़ते हैं। क्योंकि लेडीज अंदर ये लोग को हिंदू लोग को अच्छा नमाज की यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। इनकलाब टीवी जो है कि कवरेज कर रही है
जो 13 रजब है उर्स शरीफ है, 16 रजब तक ये खाने का इंतज़ाम रहेगा, जो कि दोपहर सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना रहेगा। तो ये हमारे जितने भी खैर हज़रात हैं, जो खैर हज़रत मौला अली के चाहने वाले हैं, वो लोग एक रोज़ का एक जिम्मेदारियां लेते हुए हैं और ये अपने सामने है। आप जानेंगे इनसे क्या है। आपका नाम क्या है साहब? सैयद हसन ज़ाहिर। आपका नाम? सैयद हसन ज़ाहिर। आप कब से खिला रहे हैं और क्या है इसका मकसद? पहला साल है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह तौफीक दे तो हर 13 रजब को दिन में हम खिलाएंगे, क्योंकि हमारे को पता चला था स्लॉट खाली है जी, तो भी बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो ये हर साल खिलाएंगे। और आप कितने दिन तक खिलाएंगे और कैसा है ये आपका तौर तरीका? आज हमारा सिर्फ ये सुबह से यानी दोपहर तक का स्लॉट है, 5 बजे। शाम में कौन खिलाएंगे? शाम में कोई दूसरे साहब है, उन लोग खिला रहे हैं। किस तरीके से? शिया अपनी ईरानी कमेटी है? नहीं, ये जो है सिर्फ मेरे खुद की तरफ से है, मैं इंडिविजुअल तरफ से खिला रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर है। अभी हम लोग सुबह दोपहर में स्टार्ट करें अबाउट 1 o'clock, शाम में 5-6 बजे तक खिलाएंगे। उसके बाद दूसरे साहब है, उन्होंने जो है रात में खिलाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। बोलिए, 2 बार कहाँ से आए, किधर से आए, आपका नाम बोलो। मेरा नाम शिरीन ज़ारे है। क्या है? हज़रत अली के उर्स शरीफ के मौके पर आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जी, मौला अली तो माशाल्लाह बहुत ही मारूफ जगह है। यहाँ पे आप देखेंगे हर मज़हब के लोग आते हैं, माशाल्लाह हिंदूज़ भी हैं, हर कौम के लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जगह जो शहर जो हैदराबाद जो नाम है, ये जिस शख्सियत के नाम से है ये शहर हैदराबाद, हैदर है कौन, ये शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हैदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम है, जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर थे। उनको मौला मुश्किल गुशा भी कहा जाता है, यानी कि जो हर हाजात को रवा करने वाला। तो हर हाजात यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आप बस दिल में बस मन्नत करिए कि इंशाल्लाह कि आप यहाँ पे आएंगे, कोई नज़र देंगे। तो काफ़ी लोग एक्चुअली जो इनकी यहाँ पे जो बरीड है वो नजफ शरीफ जो इराक में है, वहाँ पे ही इज़ बरीड ओवर देयर। बट जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि ये वो जगह है, 1400 साल पुरानी जगह है मौला अली। यहाँ पे आप आइए, वही हाजात करके, तो मौला मुश्किल कुशा हर जगह माशाल्लाह वो हाजात रवा करते हैं। ये पूरा हैदराबाद ही जो है मौजूज़ा है, जो मौला के नाम से मशहूर है। अगर आप पंजगुटा जाएंगे, वो पंजगुटा नाम भी है, देखिए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का पंजा और घुटने का है। तो वहाँ पे आप जाएंगे कोई शरीफ में, वहाँ पे भी बहुत मुराद लोगों की पूरी होती है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पहाड़ है, वहाँ पे भी लोगों की मुराद पूरी होती है। तो माशाल्लाह ये 13 रजब तो मखसूसी है, जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, जहाँ काबा में मौजूज़े से जो दीवार अपने आप खुली थी, ये बहुत बड़ा मौजूज़ा है। और वो काबे की दीवार को लोग बहुत कोशिश करें कितने सदियों के बाद भी वो क्रैक को बंद करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल। एंड तो यही वो 13 रजब है जहाँ पे हम वापस याद करते हैं जो शेर खुदा मौला मुश्किल गुशा, हाँ, जो मौला मुश्किल गुशा जी। तो 13 रजब, दिस इज़ दैट द स्पेशल डे ऑफ द डे व्हेन हज़रत अली अलैहिस्सलाम वाज born, the day the holy Kaaba, the walls of the holy Kaaba cracked and the entire wall opened on its own, and Hazrat Ali alayhi salam's mother Janab Fatima Asad, she went inside and Hazrat Ali alayhi salam was born. So this is a miracle which the entire science and technology is not able to fill the gap of that the crack which is there in the Kaaba. This itself is a miracle. And हैदर अलैहिस्सलाम, हैदर मौला मुश्किल गुशा को अगर आपने नहीं जाना तो that is your biggest बदबख्ती, because he is the distributor of people who is going to be given, he is the right hand of Allah, you can say, example, he is a Qasimun Jannah, that means वो तकसीम करने वाले हैं जो जन्नत में जाएगा और जो बरज़ख जो जहन्नुम में जाएगा। तो अगर आपने अपनी आखिरत के लिए प्रिपेयर करना है, if you want to be prepared for आखिरत, and it's just like, for example, if you want to give a case of your, and you have to appoint somebody as your attorney to fight for your case. Hazrat Ali alayhi salam is like that attorney, and if you do not make him your attorney, no other attorney will be allowed to speak on your behalf on the day of judgment. And Hazrat Ali alayhi salam, mashallah, is the only one who will be allowed to for the intercession on the day of judgment. And belief in Hazrat Ali is not just belief in him. The belief in all the 12 imams, right from Awwal. Hazrat Ali is the Pehla Imam, he is the first Imam, and the last Imam, inshallah, I pray that may Allah hasten the reappearance of Imam Mahdi alayhi salam, the grandson of Hazrat Ali alayhi salam, the grandson of Prophet Muhammad. The world is awaiting justice
The world is waiting for his return, and may Allah hasten the reappearance of Imam Zamana, and may Allah also rebuild Jannatul Baqi, because that is one thing which we really regret, that in Saudi, if you go, even the grandsons of the Saudis and grandsons of all those people have a beautiful grave where there is shed. But unfortunately, the wife of Hazrat Ali alayhi salam, her grave, and of our fourth Imam and of Imam Jafar Sadiq, Imam Baqir, their grave was totally razed to the ground. And right now we are awaiting that, as a decent courtesy, the Saudi government should do something by rebuilding the Jannatul Baqi. They deserve because they are the family of Prophet Muhammad. The royal family is given so much of respect and honor, and the royal family of Prophet Muhammad's grave, this is the disrespect which is being given, that the grave of Bibi Fatima Zahra Salamullah Alaiha still does not have a shade. So this is what I want to request the government, and everybody should speak out, because this will be the biggest hadiah to Maula alayhi salam if this wish gets fulfilled. We are waiting since many years for this. And I just pray that in this Maher Rajab, in this 13th Rajab of this Mubarak day, may Allah hasten the reappearance of all our beloved Imam, and may Allah fulfill the Jaiz Hajat of all the Mu'mineen and Mu'minat. May Allah forgive the sins of all the Marhum Mu'mineen and Mu'minat. This is just a small just effort from our side, that we are lucky that on this day of 13th Rajab we have been given the opportunity to just give little bit food. It's nothing but just vegetable biryani. We decided to give vegetable biryani because I heard a saying of Hazrat Ali alayhi salam that do not make your stomach the graveyard of animals. So that's the reason we decided to go by his this thing. It's not that I say that you should not have. I mean, this is just. Madam, how many days you? This khane ka insan is today. Yeah, this is from our side. Today is from my husband. Today Urse Sharif, today 13 Rajab. Yeah, today 13 Rajab. This afternoon intizam is from our side. Every day there is different. 13 to 16 Rajab. जब तक आप खाना वाना खिलाएंगे? Inshallah, like bani alag hai, sham ke bani koi aur hai, and again maybe for tomorrow also there is another bani. Right now, this food has been arranged by our. We have ordered it from Hilton Hotel. Your husband name, good name? Yeah, my husband is right here, Sayyid Hassan Zare. आपके होटल का नाम बोलिए मैडम? हमारा होटल नहीं है, हमारे cousin near Khairtabad, and it's a very good hotel and the food is very good, and we're thankful to them also for taking our order. Thanks madam. Thank you so much. Thank you. Inqilab TV. Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम, मैं जम्मू कश्मीर दा रहने वाला, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला वाला, तहसील लुड़ी है, काजी माली थी मैं बोलता छूला थी, हमारा नाम इशफाक अली काजमी है। हमारे नाले बड़े साथी सैयद रज़ाक हुसैन, तफैल, रज़ू काजमी एंड साकिब। हाँ, गल करो जनाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद रज़ाक काजमी तो जड़ा छूला थी बोलता तहसील लुड़ी डिस्ट्रिक्ट बारामूला जम्मू कश्मीर स्टेट है अस्ती, जो कि यूनियन टेरेटरी बन चुकी है। असी हैदराबाद में आए दिया, बहुत बड़ा नज़ारा है। मौला अली की दरगाह पर आए दिया, ये पीछे लोग भी हैं बहुत सारे, और 13 रजब आज बड़े धूमधाम नाल मनाया गया था। इतना आएगा बहुत ही दिलों को सुकून मिलिया। मन्नत देनी सी जी मन्नत दी और बहुत जल्दी ये मन्नत पूरी हो गई। और हमारे नाल मेरे साथी तुफैल है, रज़ाक है, साकिब है, बहुत बढ़िया लगे सो। तो सैयद तुफैल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, सैयद तुफैल हुसैन, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से कश्मीर से बोल रहा हूँ। इस टाइम मैं हैदराबाद में आया हूँ। मौला अली इसका जो मेरा नाम सैयद रज़ाक हुसैन काज़मी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी छूला कश्मीर थी बोलना। मैं इस वक्त हैदराबाद दरगाह हज़रत मौला अली से आए हैं। बहुत असल व्यू है तेरा, हैदराबाद सिटी है, बहुत असल लोग सिटी असल दरगाह हर एक की मन्नत पूरी होती है। तो उसमें मैं एक चीज़ आखसा कि दूसरे लोग भी आओ, आकर देखो और वापस हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारा नाम सैयद साकिब हुसैन है। मैं भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील लुड़ी रहना वाला एंड के दा। मैं भी इतना हैदराबाद में आया था। इतना मौला अली दरगाह बहुत मतलब साइलेंट जगह है, बहुत असल जगह, बहुत सारे लोग इतना दीदार किते आने हैं। उसके बाद मतलब हैदराबाद भी एक बहुत असल सिटी है, क्लीन सिटी है, बहुत असल लगे था का। मैं तो चाहना कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये थी मौला अली दरगाह पे गुजारना। Thank you.
बस
जहां को उसने पहुंचाया, कर ये हैदर का कसीदा कहती है खुद फातिमा ज़हरा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अली जिया, मतलब यही दामन न छूटने पाए जनाबे अमीर का। और मेरे तो सदा मोहम्मद की दुआ, गुरूरे किबरिया दारुशिफा से होते हुए गुजरते हुए अंजुमनों के साथ कई तंजीमों के साथ शेरे के जुलूस में शक्ल में कसीर तादाद में नौजवान और कसीर तादाद में अक़ीदतमंद के जुलूस की शक्ल में आ रहे हैं। और होते हुए सिकंदराबाद से होते हुए मौलाली के करीब करीब पहुंच चुका है ये जुलूस। आजा आजा आगे बढ़ जाओ, चौरस्ता थोड़ा आगे ले लो मेरे भाई। शेरे के संग चलो चलो शेरे के संग चलते रहो। आजा जरा मेरे पीछे लो। आसमां मौला तेरी ज़ौजा के सदक़े में सभी को रिज़्क़ मिलता है, सभी को रिज़्क़ मिलता है। तेरे सदक़े मलंगों की लगी है रोटियां मौला, फ़कीरों की सदा रजीत भाई जरा दिखे दो। पलट जा कहाँ का देना? रफीक राज रफीक राज मौला कायनात अली के आज उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ स्टेज को सजाया गया है और जितने भी शेरे आ रहे हैं पुराने शहर से उनको इस्तकबाल करने के वास्ते यहाँ हमारे अपाजी मौजूद है, उनसे अपन कुछ बातचीत करें। आपकी राय क्या है, कब से कर रहे हैं?
मौला अली की शान में 13 रजब हमेशा मौला अली पहाड़ पर जाता है सेरा, हम लोग इस्तेक़बाल करते हैं, 20 साल से करते आ रहे हैं। हमारे भाई जो मिर्ज़ा आज़म अली थे उन्हें इस्तेक़बाल करते थे। उनका इंतकाल होने के बाद मैं और मेरे भाई और एक भाई है उसी भाई, दोनों मिलकर इस्तेक़बाल करते हैं हर साल। 20 साल से मुसलसल करते आ रहे हैं और करेंगे। और हिंदू मुसलमान कोई भी इधर ऐसा नहीं रहता, मिल के सेलिब्रेट करते हैं। और यूथ के बारे में आपके साथियों के तमाम साथियों के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे दोस्त लोग हैं। और वेलफेयर काम कुछ करते हैं आप लोग? वेलफेयर यानी कि करते हैं। कुछ मेडिकल कैंप्स वगैरह और सोशल सर्विस वगैरह करते हैं। तो बोलिए आप। हज़रत अली के उर्स शरीफ के मौके पर कोई सोशल वर्क क्या होती है आपके? खाने का इंतज़ाम होता है, सभी लगाई जाती है और 16 रजब तक तबरुकात का इंतज़ाम किया जाता है। शुक्रिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौला अली के सदर, इब्तदाई सदर जनाब अली जनाब नाजिद भाई हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार उर्स शरीफ के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिद जान है। ये मेरे दोस्त का स्टेज है। मौला कायनात हज़रत अली के जन्मदिन के मौके पर मैं मिर्ज़ा आज़म अली जो मेरे ख़ास दोस्त थे, जो 20 साल से ये इस्तेक़बाल संदल का इस्तेक़बाल करते हैं यहाँ पे। आज जो है सो उनके छोटे भाई काजिम अली आज उन्होंने इस दुनिया में नहीं रहे, जो उनके छोटे भाई काजिम अली स्टेज संभालते हुए। और मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग एक अक़ीदे से कोहे मौला अली के दामन पहाड़ पे आते हैं, एक अक़ीदे से अपने जो भी परेशानियाँ हैं पूरा करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तकरीबन कामा यहाँ पे 700 लाइट्स स्ट्रीट लाइट लगाए और टेम्पररी टॉयलेट्स लगाए, बहुत सारे काम यहाँ पे कराए। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज़ का रैंप का काम भी चालू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आइंदा जो है फिर साल और अच्छे पैमाने पे होगा। मेरे छोटा भाई काजिम अली जो अच्छे पैमाने पे करते काम, ये एक ही नहीं, इनका काम तकरीबन सोशल सर्विस भी करते, सबील का काम है और गरीब बच्चों की शादियां हैं, मेडिकल कैंप करते हैं तकरीबन, और खाने का इंतज़ाम भी रहता है 13 रजब से 17 रजब तक। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ये नाजिद अली साहब थे जो मजलिस इब्तिदाई के सदर।
ख्वाजा गरीब नवाज सॉन्ग। अलिया से इनकी सरपरस्ती में कोटला अलिया इनकी सरपरस्ती में सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को मुखातिब करने का मौका दिए। मैं तमाम मैं जाने वाले पर्टिकुलरली हमारे मौलाली के जाने वालों को मुबारकबाद देता हूँ और खुशी का दिन है। मौलाली जाने वाले पूरी दुनिया में और हमारी जो कमेटी है क्षेत्रीय ज़रा कमेटी की तरफ से हम ज़रा जरूर निकाले कि गुज़श्ता 76 ईयर से हम निकाले बराबर। और इसमें जो है हर एक कम्युनिटी को हम इन्वाइट करते। अब की बार कोविड रहने की वजह से VIP नहीं आए, वरना हमेशा कोई ना कोई VIP रहते थे हमारे पास। और हम जो है बिल्कुल पीसफुली तरीके से जाते हैं। हमारे जुलूस में जो है घोड़े ऊँट और मरफा वगैरह सब रहता। और हमारे जुलूस के इंतज़ार में बहुत लोग रहते। जगह जगह हमारे जुलूस का इस्तेमाल हुआ और पुलिस वाले बहुत कॉपरेट करे हमारे साथ। और हम शुक्रगुजार हैं सबके जो हमारे इस्तेमाल करे। जगह जगह हमारा इस्तेमाल हुआ, मौलाली में भी हमारा इस्तेमाल हुआ। हमारी कमेटी सबसे मशहूर है और इनकलाब TV शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने हमारे मौका दिया। वही मौला सिखाया माने अपनी लोरियों में, या अली मौला सिखाया माने अपनी लोरियों में, या अली मौला। जो सच्ची बात होती है, जो सच्ची बात होती है, वही सबको बताते हैं।
आज विलादत बासआदत हज़रत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर जो जुलूस बीबी के अलावे से बरामद होकर मौला अली आया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कामयाबी और कामरानी के साथ अमन व अमान के साथ ये जुलूस मुकम्मल मौला अली पहाड़ पहुँचकर सहरे पेश किया गया, संगत को पेश किया गया। मैं तमाम जुलूस में शिरकत करने वाले तमाम नौजवानों से, तमाम बुज़ुर्गों का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। हम आपका बैठे हैं। हज़रत मौला कायनात अली रज़ियल्लाहु ताला का उर्स शरीफ के मौके पर इनकलाब की टीवी के कवरेज के उर्स शरीफ का ये नज़ारा है। ज़ायरीन का आना जाना है, कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। ज़ायरीन तमाम ज़ायरीन कसीर तादाद में आए हुए हैं। मुख्तलिफ महाराष्ट्र कई अजला से, कई रियासतों से आए हुए हैं ज़ायरीन। और आप यहाँ का मंजर उर्स शरीफ का मंजर इनकलाब की टीवी के ज़रिए देख सकते हैं। सारा कुछ अच्छे के जवाब आप लोग कहाँ से तशरीफ़ फरमाए हैं और किस रास्तों से गुजरते हुए आपका संदल मुबारक का ये जुलूस यहाँ मौला अली का हो? माशाल्लाह अभी पूरी तफसील पुलिस वाले पूछे जैसा पूछ रहे हैं। रूट ठीक है, हम लोग अलाए बीबी से स्टार्ट लेते हैं। अलाए बीबी से तकरीबन हमारा 1:30 बजे हम वहाँ से निकलते हैं। और मुख्तलिफ जो अलाए बीबी से निकलने का मकसद ये है कि जो बीबी के अलम का जो मेन रास्ता है उस रास्ते से होते हुए हम चादर घाट और उसके बाद जो दूसरे रास्ते हैं जो हमें पुलिस अलाउ करती है उन रास्तों से कोहे मौला अली तक आते हैं। और ये मेरे बेटे का बिना करदा सेहरा है और इसको ये 27वां साल है, 26 साल अब तक हो चुके हैं। और मेरे बेटे का नाम मिर्ज़ा रियाजुल हसन गोल्डी जो इस वक्त AIMIM के MLC और कुछ आप गरम है।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज उस शख्सियत की विलादत बसादत का जिक्र है और आज सारी दुनिया में हज़रत खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की पैदाइश का दिन है। क्या बयां आपकी हो, क्या बयां आपकी हो तारीफ़ या अली, क्या बयां आपकी हो तारीफ़ या अली, जिसकी तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। आपने फरमाया अली दरवाज़ा है और मैं शहर हूँ। अना शहरुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह। जिसकी ज़बान अक़दस से ये ज़िक्र निकल जाए उस शख्सियत का क्या मामला होगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। याद रखिए, अली मिले तो नबी मिले, नबी मिले तो अली मिले। जब तक कि हज़रत अली के चाहने वालों को उनको अज़मत, उनका मकाम और उनकी शान समझने वाला तो कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। हज़रत अली करम करीम की शान वो है कि आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नौजवान, आपकी नबूवत का पहले मकाम समझने वाले और नौजवानों में हुज़ूर नबी करीम की शान को पहचानने वाले और इस्लाम के झंडे को लहराने वाले वो वाहिद शख्स हैं। फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्ल शैइन मैं मिन नूरी। मैं अल्लाह के नूर से हूँ और हर शय में मेरा नूर है। और आपने फरमाया कि मैं और मेरे नूर से अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अली को पैदा फरमाया। हज़रत अली की शान ये है कि आप लख्त जिगर बुतून हज़रत बी फातिमा ज़हरा के शौहर हैं और आपकी शान ये है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन सलाम जो शहदाए करबला के सरदार आज़म हैं, उनके आप लख्त जिगर हैं। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मालूम हुआ इस्लाम की अहमियत, इस्लाम का मकाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से। आज इस जश्न मुबारक के मौके पर सारी दुनिया में याद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनाया जाता है और आपकी इल्मियत, आपकी अज़मत, आपकी शान का वो आलम था। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़े ही इल्म अमल से और बहुत ही मुदब्बर अंदाज से आपको सरफराज फरमाया। आपकी इनकिसारी का वो आलम है। एक मरतबा एक साहबी चल रहे थे तो आप पीछे पीछे हुए और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया।
आपसे पूछा गया कि या अली आपने ये ऐसा क्यों किया, तो आप फरमाया कि मैं अपने आप को इनकिसार बनाना चाहता हूँ। इस्लाम मोहब्बत, उख़्वत, ताकत और हिम्मत का नाम है। मैं हमेशा अल्लाह को वादहू ला शरीक जानता हूँ और हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपना नबी मानता हूँ। Thank you.